नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम में, जहां हम देश दुनिया के तमाम पद्मश्री से आपकी मुलाकात करवाते हैं। और आज की श्रृंखला में एक ऐसे विशेष अतिथि जिन्होंने न केवल अपने काम से, अपनी निष्काम भावना से, अपनी सोच से और अपने विचारों से देश दुनिया में नाम कमाया है, बल्कि इन्होंने अपनी निष्काम भावना से भी अपने अनुयायियों तक बहुत बड़ा संदेश दिया है। आज हम एक खास अतिथि से मिल रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये है बाबा शिवानंद जी। बाबा शिवानंद जी स्वामी, आपका स्वागत है। 126 वर्ष के हैं और निसंदेह ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, ये एक लिविंग एंटिटी की तरह इस देश में है। 126 वर्ष कम नहीं होता। इनका परिचय मैं शायद दूं तो वो छोटा पड़ जाए, इसलिए मैं ज्यादा परिचय विस्तृत में ना जाकर संक्षिप्त परिचय दूंगी। सबसे लंबे समय तक जीने वाले निरोगी निष्काम भावना से प्रेरित एक बाबा, एक ऐसे संत जिन्होंने देश दुनिया में अध्यात्म को पुरजोर तरीके से फैलाया है और लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं। दुनिया भर में ट्रैवलिंग करते हैं, यात्राएं करते हैं, अपनी बात, अपनी भावना, अपनी थॉट्स और अध्यात्म को देश दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो आज की इस कड़ी में मिलते हैं शिवानंद जी से, शिवानंद बाबा जी से, जो इस पूरे देश के बाबा हैं। और आज इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये राज जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इतने लंबे समय तक खुद को कैसे स्वस्थ रखा है। स्वागत है बाबा। मेरा पहला सवाल है आपसे, हाउ यू डिफाइन स्पिरिचुअलिज्म। হাউ ইউ ডিফাইন স্পিরিচুয়ালিজম, আধ্যাত্মিকতাকে কিভাবে তুমি বলবে, ব্যাখ্যা করবে? হাউ ইউ ডিফাইন স্পিরিচুয়ালিজম, ওনার কোশ্চেন এটা। It's a process by which a man is eternally and absolutely connected with the Supreme Authority. That's great. Yes. Definition. This is nice definition. Definitely, it's nice. Like we can connect with the God, we can connect with the people to people connection, right? Yes. Spiritualism Hey, in his that's visions, in his thought, in his process mind, like spiritualism Then is I'm like able that. to हम देख सकते हैं ये कितने ऊर्जावान हैं। सुबह से बहुत सारे इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, बावजूद इसके ये खुश हैं, प्रसन्नचित हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं। बाबा ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप इतने फिट और स्वस्थ कैसे रहते हैं। What are the secrets behind your fitness? फिट, इतना फिट कैसे रहते हैं? secret. How to define secret? It is a abstract, very abstract. Nobody can define secret in this world. Secret, you should know how to control our tongue, control our mind. Our mind is very notorious. You should know how to control your notorious tongue. Notorious mind. You should practice how to correct life deed. Our lifestyle is full of defects. We should know how to rectify our personal life. How to lead a life in a very correct way. Baba. Yeah, that's a way of life. Like Yes. That's so, it. the next question I can ask, Baba, how can we remain spiritual while living in outer world? You know, বলছে how can we live spiritual living in this outer world? আমরা কিভাবে স্পিরিচুয়াল থাকবো? because there are so many disturbance in outer world. How can we? Nobody is spiritually enlightened in this mundane world. This is my conception. Nobody is spiritualist. Those who are spiritualists, they have the full of desires, so full of how to earn money. And, So people are running after money. that's why they are And virtual Even those who are They are super not- spiritualists, they are also running after money. they do not enjoy long life.
what we have seen in Baba's life, spirituality, what we understand that Baba has no desire. No desire. Desireless It's a life. desireless It life. is less Baba life. is not hankering after money, Money, name, and name, fame. fame. So you have to free from this. And You have to control your mind. You have to control your senses. those who are Only then you gain control, and then you become spiritual. You have to you have much full control over your body, so that you remain joyful. those who are leaders, political leaders, they cannot enjoy longest life. Yes. So politicians can't enjoy the long Never life. never in my life. They are short life. Because Baba tells that if you have tension, you have desire, No tension, tension. it decreases your life expectancy. Baba has no tension. Baba is leading a different kind of life. He does not hanker after name, fame, And money. and money. So he's cold. He says that if you are cold, your life is beautiful. This is. Yeah, so being Yeah, simple. if I summarize that the question you started and the Baba given answer so that our mind is very notorious. If we can control our mind, then we can just leave these worldly things from our mind. These are very provocative Right. to us. We are very much provocative with all these worldly things. So if you can control your mind, you see, people are wearing so high costly dress and all things, Baba. That much which is sufficient to protect his body, nothing beyond that. Yeah. So that is the control of his mind. What he is taking, that much of food which is required for his body. It's not that which Not is required for his excessive. tongue. That much of food, what is required for his body, he is taking that much of food. So if you can control your mind and can keep yourself away from these worldly evils, he said all these are worldly evils, then you can concentrate your mind towards God. And Baba is doing this only. He is praying to God all the time for the benefit of the world. Okay. Not for the self benefit. No, It's for not all. if the world is benefited, then he will benefit automatically. That is his thinking. So in his thinking, that is the spiritualism. That is how we can That is catch a Adhyatma. culture. Yeah. उन्हीं के गीता की नाम का भूलेगा भैया उसका नाम का भूलेगा पद्मश्री एवार्ड Padma Shri. उनके रचों के भाई जो विश्व रूप से जान लो ना क्या बात मुझे को भागना नाम का क्या हमने ये बोला তোমার নামটা যে জানলো কারণ যোগে যোগে তুমি ना লাইফটা एक होता ना क्या नाम का भूलेगा इसी কৃষি যে কাজে কৃষি কাজের জন্য पद्मश्री जो है পদ্মশ্রী। हम पद्मश्री ना पाइलो लोग আমাকে জানতে ও বুঝাও पद्मश्री যদি আমাকে নাও দেয় তবুও আমার লোক ওয়াইল্ড জানতে Ah. জানো What do you say? He is saying Wow. that if Padmashri's award was not offered to me, আগে again people should have known my আগে name. উনা কথা বলো Ah. উনা কথা বলো উনি যে মনে চেয়েছে কিছু তো জানে না He has received Padmashri award, but the world doesn't know about him so much. So through Padma Shri, more and more people come to know about him, his contribution. জানতে হতো গিয়া একটু লোকে Ah. আর আমারটা About him, only few people know. But about himself, the Many whole world আমি is যদি Worldwide আমি come. যদি পদ্মশ্রী নাও আমাকে দেয় বিশ্বকে আমাকে জানে। because समझ the में sum आया of तो आपको। substance is that Baba's life is unique in the history of the spiritual world. হ্যাঁ That's why Baba's name will be known to. all corners of And I the say- world. Whether he receives Padmashri or not, he has received It doesn't Padmashri. matter. It is not a because it will be spreading gradually because his life is unique. नमस्कार। तो आज हम चल पड़े हैं पद्मश्री से और पद्म अलंकारों से इतर थोड़ा दूसरी ओर। आज हम बातचीत कर रहे हैं नारी सम्मान पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से
देश भर से चुनी हुई चुनिंदा महिलाओं को ये खास तौर से पुरस्कार दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष 2020, 2021 और 2022 में भी इस तरह के पुरस्कार सम्मान दिए हैं। वैसी महिलाएं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समाज में उत्कृष्टता के लिए अपना बेहतर योगदान दे रही हैं, उन्हें इस तरह का सम्मान दिया जा रहा है। खासतौर से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा उसके तहत इस तरह के सम्मानों का आयोजन किया जाता है और राष्ट्रपति स्वयं अपने हाथों से देश की सशक्त नारियों को ये सम्मान देते हैं। पिछले वर्ष भी इस सम्मान में बेहतर और उत्कृष्ट कार्य करने वाली अनेक महिलाओं को सम्मानित किया गया। वैसी संस्थाएं, वैसी महिलाएं जो देश, समाज और नारियों के उत्थान के लिए कुछ विशेष कार्य कर रही हैं, उन्हें नारी सम्मान अवार्ड हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष महिला दिवस यानी 8 मार्च के शुभ अवसर पर दिया जाता है। चूंकि हमारा कार्यक्रम पद्मश्री पे आधारित था, लेकिन इस कार्यक्रम को हमने थोड़ी एक अलग श्रृंखला बनाई है और आज की इस विशेष श्रृंखला में नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित ऐसी महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष योगदान दिया है और जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से एक मील का पत्थर साबित किया है। तो आज हमारी अतिथि हैं वनीता, सुश्री वनीता जी, वनीता बोराड़े, जो कि बुल्ढाना से आती है, महाराष्ट्र से हैं और सर्प विशेषज्ञ हैं। मुझे लगता है इनका रिकॉर्ड जब मैं आपको बताऊंगी तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 51,000 से भी ज़्यादा सांपों को इन्होंने रेस्क्यू किया है और न केवल रेस्क्यू किया है बल्कि उनको एक नेचुरल हैबिटेट में पहुंचाया है, उनको एक प्राकृतिक वातावरण में उनको पहुंचाया है, उनको एक सुरक्षित स्थान मुहैया कराया है। वनीता जी देश भर में बहुत पॉपुलर हैं, लोकप्रिय हैं। पिछले 15 सालों से इन्होंने बहुत काम किया है सांपों को लेकर, वन्य जीवों को लेकर, खासतौर से उनके रेस्क्यू को लेकर। तो आज हमारी इस श्रृंखला में, नारी शक्ति सम्मान श्रृंखला में, हम सुदूर बुल्ढाने से आई वनीता जी से बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत में हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने किस तरह से ये रिकॉर्ड बनाया। मेरे ख्याल से आप इंडिया रिकॉर्ड में भी शामिल हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। महाराष्ट्र में तो इनको अनेकों रिकॉर्ड्स मिले हैं, देश भर में इनको अनेक सम्मान मिले हैं। इनका मैं अभी देख रही थी, पूरा एक सम्मान, एक पूरी पुस्तिका है जिसमें ये भरी पड़ी है इनके कार्यों की प्रशंसा। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री स्वयं इनसे मिले और इनसे इनके कार्यों के बारे में उन्होंने जायजा लिया है। तो इस नई श्रृंखला में आज हम देश की उन सम्मानित नारियों से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने अपने उल्लेखनीय कार्य से एक मील का पत्थर स्थापित किया है। तो स्वागत है वनीता जी हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है नारी तू बढ़ती चल, नारी तू चलती चल। तो आप जरा बताएं कैसी ये ताकत कैसे आई, ये हिम्मत। कहते हैं सांप पकड़ना और सांपों के साथ खेलना ये बहुत जीवट वाला व्यक्ति करता है, जिसके पास हिम्मत हो, हौसला हो। और ख़ासतौर से महिलाएं जब इस पेशे में आती हैं तो ये काम थोड़ा अलग हो जाता है। तो कैसे आना हुआ, थोड़ा बताएं कैसे, कितनी हिम्मत और कितनी ताकत, ये साहस कहाँ से आया, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सांप चीज़ ही ऐसी है कि सांप नाम में ही बहुत डर है, क्योंकि बचपन से ही हमारे ऊपर सांप के बारे में ऐसे ये करते हैं कि सांप काटता है तो आदमी मर जाता है। डर की वजह से सब सांप के दूर भागते हैं और सांप को अगर वो दिखाई देता है तो मार डालते हैं। बिल्कुल। तो जहाँ खेती है, किसान लोग हैं, वहाँ पे जब बारिश का टाइम रहता है तो उस टाइम में बहुत सारे सांप निकलते हैं। बारिश के टाइम में सर्पदंश से भी कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से जो बचपन में मैं जो ये काम करती थी, मेरा गांव जो है मैका, वो जंगल की बीचों बीच में है। मेरे आदिवासी दोस्त थे, उनके साथ रह के मैंने ये सब चीजें बचपन में सीखी। तो बाद में फिर हमारी शादी होने के बाद वो सामाजिक कार्य का बहुत शौक था। हाँ, वो कीर्तन प्रवचन करते हैं और इस वजह से अगर सांप एक जीव है, लोग उनको मारते हैं। वैज्ञानिक इसमें जो अगर लोगों को समझाएंगे तो उनको जाने भी बच जाती है, लोगों की भी जाने बचेंगी और सांप की भी जान बचेगी। इस हिसाब से हम दोनों ने पति पत्नी ने मिलकर ये काम शुरू किया। बिल्कुल। हम वनीता जी से बातचीत कर रहे हैं। वनीता बोराड़े बहुत ही मृदुभाषी महिला हैं और देश में एक अनूठा कार्य कर रही हैं। एक ऐसा कार्य जो खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत वर्जित क्षेत्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सांपों से और वन्य जीवों से खेलना पुरुषों का कार्य है और वो एक खास तरह से दबदबा है पुरुषों का। लेकिन इस क्षेत्र में वनीता जी एक अलग ही मुकाम कायम कर रही हैं। लीग से थोड़ा अलग हट के इन्होंने ये काम किया है। समूचा देश इनको सर्प मित्र के नाम से जानता है
और मुझे लगता है बुल्ढाणे में तो लोग इनको सांप वाली ताई भी कहते हैं, शायद उस नाम से भी ये पॉपुलर हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब महिलाएं किसी क्षेत्र में लीक से अलग हटके कुछ काम करें और अपनी साहस का और अपनी शौर्य का लोहा मनवाएं। वनीता जी, आज मुझे लगता है पिछले दिनों आपको एक और अवार्ड भी मिला है। कुछ उस अवार्ड के बारे में बताएं कि वो क्यों दिया गया, वो आपको इंडिया रिकॉर्ड्स में आप शामिल हुई हैं, वो क्यों मिला है और क्या विशेष है उस अवार्ड में? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का वो अवार्ड है। तो हमने जो सांप के बारे में जो मैं रेस्क्यू करती हूँ और जंगल में छोड़ती हूँ, तो उसका हमने ऑन रिकॉर्ड जो वन विभाग में नोंद की, तो 51,000 से भी ज़्यादा सांप पकड़ के जंगल में छोड़े हैं हमने गांव से। तो उसके बाद महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का वो एक अवार्ड है। हाँ, तो हमने जो लोगों में जन जागृति की, जो स्कूलों में, कॉलेजेस या फिर कुछ डिपार्टमेंट्स में, हम गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, तो कुछ ग्राम पंचायतों में हमने प्रोग्राम्स लिए, लोगों में जन जागृति की, इस वजह से वो अवार्ड। ओके, ये इसलिए ये सम्मान आपको दिया गया। अच्छा वनीता जी, मुझे ये बात बताएं कि आप चूँकि एक आदिवासी क्षेत्र में पली बढ़ी हैं और जंगलों के बीच आपका पूरा एक नैसर्गिक विकास हुआ है, आप वहाँ बड़ी हुई हैं, किस तरह से जंगल ने आपको प्रभावित किया? क्या हम ये मान के चलें कि जंगल में बड़े होने की वजह से और आसपास चूँकि एक सुरम्य वातावरण था और एक प्राकृतिक वातावरण था, इस वजह से ये जो स्नेक रेस्क्यू करने की जो कला आपके अंदर विकसित हुई, डेवलप हुई, वो शायद इससे कहीं आया? बचपन कैसा रहा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। और क्या बचपन में डर लगता था सांपों से? जी, जब पहली बार मैंने सांप पकड़ा जी, तो थोड़ा डर तो था ही, क्योंकि पहले ऐसे अभी भी 21वीं 22वीं सदी में हम रहते हैं, फिर भी सांप का इतना डर है, इतनी गलत फहमियाँ हैं। सांप के बारे में जो जानकारी होनी चाहिए वो कम है। इस वजह से अभी भी सर्पदंश से लोग बहुत सारे मरते हैं और सांपों को भी मारते हैं और प्रॉपर इलाज नहीं मिलता उनको। तो उस टाइम में तो बहुत ही सांप पकड़ना या सांप के बारे में कुछ भी आपको मालूम हो तो लोगों को ऐसे लगता था इसके पास कुछ जादू टोना है, या फिर ये जो ऐसा करती है तो कुछ अच्छा, ये भी था कि जादू टोना है। आपको वो पहला वाकया याद है जब आपने पहली बार वो स्नेक पकड़ा हो और आपको डर लगा हो? वो कौन सी उम्र थी? वो किस उम्र के पड़ाव में आपने वो सांप पहली बार पकड़ा? 10-12 की उम्र थी वो। अच्छा, हाँ, इतनी छोटी सी उम्र में आपने वो सांप पकड़ा? क्योंकि जो दोस्तों के साथ जो जंगल में जो है वो एक्टिविटीज करते हैं, वहाँ के प्राणी है, जो हरिण है, गिरगिट है, या फिर मधुमक्खियों के छत्ते हैं, ये सब निकालना उनकी रोज की आदतें होती है, दिनचर्या में शामिल थी। दिनचर्या में शामिल है। और जंगल में और भी बहुत सारे एक्टिविटीज रहती है, वो सब उनके साथ करती थी। और जब वो मच्छियाँ पकड़ने के लिए पानी में जाले डालते थे, उस टाइम में उनके साथ मच्छियों के साथ सांप भी आते थे, तो उनके साथ जब वो मच्छी पकड़ते टाइम वो मच्छी निकाल लेते थे और सांपों को पकड़ के पानी में छोड़ देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि पानी के सांप काटते नहीं हैं, इसलिए वो जो पानी के सांप है वो सहजता से निकाल के पानी में छोड़ देते थे। इस वजह से वो वैसे सांप में उनके साथ पकड़ना सीख गई। फिर बाद में जो रेड सैंडबोआ है, जिसको मंडोल सांप कहते हैं, हमारे मराठी में मांडोल सांप कहते हैं, तो वो सांप के ऊपर मेरी बहुत प्रैक्टिस हो गई, क्योंकि वो सांप जो है वहाँ वो सांप की आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि वो किसी को काटा है। इतना वो शांत स्वभाव का सांप है। तो इसलिए जो डर है, डर की वजह से सांपों को मारते हैं और लोग भी मर जाते हैं। तो ये मैंने डर आप कम कर रहे हैं। तो गांव में देखा, तो इस वजह से मैंने खुद का डर पहले कम किया और बाद में लोगों की भी बताना शुरू किया, और जो हमारे आजू बाजू में सांप निकलते थे वो पकड़ के जंगल में छोड़ना शुरू किया। कहते
स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में, जहां हम देश दुनिया से जुड़े हुए तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं जो पद्मश्री से जुड़े हुए हैं और पद्मश्री सम्मान से अलंकृत हुए हैं। आज की इस खास पेशकश है जो इस श्रृंखला में हमसे एक खास अतिथि जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। चिकित्सा से जुड़े हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, देहरादून से आते हैं और पिछले 40 वर्षों के अवदान के चलते भारत सरकार ने इनको आज इतना बड़ा सम्मान दिया है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, धन्यवाद। मूल रूप से तो सर वैसे यूपी से हैं, लेकिन अपनी सेवाएं आज के लिए देहरादून में दे रहे हैं, काफी लंबे समय से दे रहे हैं। चिकित्सा, हम जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियों और योगदानों के लिए हम अपनी पुस्तक को आपसे साझा कर रहे हैं और अगले वर्ष इसके निश्चित रूप से आने की संभावना है। लेकिन एक ऐसी हस्ती जिसने अपनी चिकित्सा के दम पे, अपने कार्य और उपलब्धियों के दम पे इतनी बड़ी जो एक निशानियां छोड़ी है इस समाज में, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, वो गौरव का सबसे बहुमूल्य क्षण है। तो आइए आज सर से मिलते हैं। सर स्वागत है। थोड़ा अपने बारे में बताएं। आज एक आदर्श स्थिति है, सरकार ने आपको पद्मश्री से अभी सम्मानित किया है और हम कितने अच्छे वक्त में मिल रहे हैं और सर हमारे मंच पे भी हैं। कैसे महसूस हो रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो पहले आपने कहा कि पद्मश्री सम्मान ही मिलना एक बड़े गौरव की बात है, वो हमारे क्या जो भी देख रहा है उसके चेहरे पे मुस्कान है और मेरे पे ज़्यादा है, क्योंकि इसकी जो इच्छा थी वो कई सालों से थी और इस समय हमारी इच्छा पूरी हो। और आप मानते हैं, मेरा जो मानना है, खुशी का जो पैरामीटर है, परिभाषा, वो जो आप चाहें वो आप सम्मान कितना बदलता है इंसान एज अ व्यक्ति? आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं तो सुबह से क्या सालों से पद, प्रतिष्ठा, प्रशंसा, पैसा, प्यार, प्रोत्साहन, पुरस्कार पाने की सबकी कामना, लेकिन सबको मिलता नहीं। क्या जब मिल जाता है तो जो मैंने पहले कहा कि जिसकी जो चाहत हो फिर मिल जाए तो उसे खुशी होती है। और जो दूसरी इनमें चीजें होती हैं, जो जितनी भी चीजें हैं, ये कैटलिस्ट का काम करती है, एक स्टिमुलेशन देती है, प्रोत्साहन देती है, जो आपको पुरस्कार है, रिकॉग्निशन देता है। यदि आप मैस्लो की हायरार्की की, लेडर ऑफ हायरार्की में कि थोड़ा सा बारे में जानना चाहें तो ये सब चीजें हैं कि आदमी क्या चाहे। पहले हमारी फिजियोलॉजिकल जो हमारी शारीरिक जरूरतें हैं वो पूरी हो, फिर हमारी सुरक्षा की, फिर हमें समाज पहचाने, फिर समाज में हो जाए तो हमें उसमें पहचान मिल जाए कि आज हम इस पद पे हैं। और जब सब आपको मिल जाए तो जब आपकी अंतिम इच्छा होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आप करना चाहें वो यदि आप कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। और ये सब चीजें एक जो है एक सीढ़ी है, तो जब आपको मिलती है तो इससे होती है और खुशी मिलती है। और जो काम, मेरा मानना है कि जब आप खुश होंगे तो काम की क्वालिटी जो है, गुण है, वो सब बहुत अच्छा होता है। जितने लोगों को काम को देखा है, उसको हम सर्जन के नाते नहीं, आपको कलाकार के नाते बताते। कलाकार अपने काम से खुश होते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल। तभी वो कला में और निखार आता है। तो परिष्कृत होती है कला। खुशी का काम से सीधा वास्ता है जी। काम का विकास से सीधा वास्ता है। और यदि आप खुश नहीं है, दुखी है किसी भी वजह, चाहे आपका पेट भरा ना हो, जो आपको अच्छा पद ना मिला हो, आपसे नीचे वाला ऊपर पहुंच गया हो, आप चाहते मुझे 1 कमरे का मकान मिला, मुझे 5 का मिलना चाहिए, तो जब आप इस उधेड़-बुन में लगे होंगे तो जो काम आप करते हैं, काम का गुणवत्ता है वो उतनी अच्छी नहीं होती। मेरा तो मानना ही है। और मेरे लिए क्या हुआ, जब हम काम करते, काम अच्छा होता है तो मुझे तो इतनी खुशी मिलती हो। जब आज इतने खुश होते तो कल और अच्छा काम होता है। क्या बात है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, हम सिर्फ एक पद्मश्री से नहीं मिल रहे हैं, एक पद्म अवार्डी से नहीं मिल रहे, एक अच्छे वाचक से मिल रहे हैं, अच्छे ऑरेटर से मिल रहे हैं और इनकी वाचन शैली से मैं मंत्रमुग्ध हूँ। संभवतः हमारे दर्शक भी मंत्रमुग्ध होंगे जब आपकी बात उन तक पहुंचेगी और गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। कितना संघर्ष झेलना पड़ा सर इस यात्रा? देखिए, मैंने, अब आप कहें तो मैंने एक, जैसा आपने कहा, लेखक, मैं सर्जन हूँ, उसके अलावा मैं कविताएं भी लिखता हूँ। क्या मेरा भी कुछ ही दिनों में काव्य संग्रह आ जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ में पब्लिकेशन। और उसमें जो आपने जीवन का है वो किताब ही नहीं है, जीवन का संघर्ष भी है। और उस किताब का जो शीर्षक है काव्य संग्रह का, वो है उपहार संदेश। उसमें जो भी कविता लिखी है उसके पीछे एक कहानी है और आगे एक संदेश। क्या बात? तो ऐसे हमारे पास सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं कि जो मैं दूं तो हर उदाहरण एक अपनी कहानी है और एक संदेश है। और ऐसे बहुत से संघर्ष हैं। मैं आपको 1-2 यही सुना सकता हूँ। तो मेरे साथ क्या, किसी के साथ घटते हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में मेरा पैदा हुआ हूँ। इनफैक्ट आपको
इतने इस एरिया से कि जो आज भी विकसित नहीं। तो आप सोचिए कि जब मैं पैदा हुआ 65 साल पहले, तो उसमें क्या विकास का रहा होगा, आप समझिए। बुंदेलखंड में पैदा, ओह, और जन्मभूमि मेरी बुंदेलखंड है और कर्मभूमि हमारी। क्या बात, क्या बात। बुंदेल ने बहुत सारे साहित्यकारों को पैदा किया है। बिल्कुल, उस मैथिली मिट्टी में वो श्रवण जज्बा है। आप मैथिली श्रवण गुप्त हैं, जी, मैथिली जी, श्रवण जी। गुप्त, और हमारे गांव में लगभग मैं समझूंगा 70 किलोमीटर का ही फर्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यदि हम घर से घर तक की बात करें, और जगह से चिरगांव से हम बचपन में क्या आज भी जाने कितने बार गुजर चुके हैं। क्या बात है। तो हमने जैसा कि देखा कि हम सिर्फ एक चिकित्सक से नहीं मिल रहे हैं, हम एक कवि से मिल रहे हैं, एक लेखक से मिल रहे हैं, एक संवेदनशील व्यक्ति से मिल रहे हैं। तो कहते हैं कि चिकित्सा का और कवित्व का जब सम्मिश्रण होता है तो एक नई चीज परिष्कृत आपने हो जो जाती है। कहा है, मैंने अपनी कविता में अपने आत्मकथन में लिखा है, सर्जरी जो है वो कला है। कोई कविता की 2-4 पंक्तियां। मैम एकदम तो ऐसे नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन यदि मुझे आप परमिट करें तो मेरे इस फोन में हम इसको जरूर, खोलें, और मैं जरूर। एक कविता नहीं, कई 2 कविताएं जरूर। तो आपको मैं उसमें क्योंकि सुनाना चाहूंगा। हमारे दर्शक जो हैं आपको एक चिकित्सक के तौर पे तो जानते हैं, लेकिन आज आपका एक संवेदनशील मन भी बाहर ये आया। आपने जो कहा है संवेदनशील के साथ मेरा जो कहना है कि आज सर्जन या डॉक्टर को संवेदनशील होना ही चाहिए, बिल्कुल। और जो कलाकार होते हैं वो तो संवेदनशील होते हैं। हम जैसे डॉक्टरों में एक जरूर होती, क्योंकि हम विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं तो हम आलोचनात्मक होते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो कलाकार होते हैं वो कला के विद्यार्थी होते हैं। जैसे कवि है, लेखक है, कला के विद्यार्थी होते हैं। और कलाकार के साथ क्या होता है, वो खराब से खराब चीज में अच्छी चीज में, बिल्कुल, बिल्कुल। वो और जीवन हम की कला। जैसे जो बुद्धिजीवी कहें या जिसको सर्जन वाले हिस्से को कहें, तो हम उसमें किसी अच्छाई में भी हम बहुत कमी निकाल पाते हैं, तभी तो उसको उच्च कोटि की ला पाते हैं। क्या तो इस बीच जब सर कुछ कविताएं निकाल लें, मैं आपसे इनके बारे में बताना चाहूँगी कि ऑर्थोपेडिक्स के क्षेत्र में इन्होंने बहुत काम किया है, अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियाँ हासिल हुई हैं। मेरे ख्याल से विदेशों का एक्सपोजर रहा है सबको। बिल्कुल रहा। और बावजूद इसके ये ज़मीन से जुड़े हैं, मिट्टी के लिए जुड़े हैं, और वो लालित्य बोध दिखता है, मिट्टी का भाव दिखता है कि अक्सर ये कहते सुने भी जाते हैं कई मंचों से कि आप जहाँ भी पहुँचे लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहें। शायद यही बात। ये बिल्कुल आपने सही कहा है कि उसका एक कारण भी ये है कि जब हम जुड़े रहते हैं या हम अपने भूत को देखते हैं, पास्ट को देखते हैं और भविष्य के बारे में सोचते हैं, और यदि इसका हम कहीं ना कहीं से इसमें रख रखाव रखते हैं तो एक बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। और जिससे जैसे मैं अभी अपने ही बारे में कहूँ कि देखिए मैं देखिए गांव से पैदा हूँ और गांव में पढ़ा हूँ, प्राइमरी एजुकेशन, हमारी मिडिल एजुकेशन कहें वहाँ तक, इसके बाद मेडिकल कॉलेज में पहुँचा। और गाँव से देखिए तो मेरी तो एक स्थिति, एक सीढ़ी तो हमारी आगे बढ़ ही गई कि कहीं हम थोड़ा पढ़े होते, कम पढ़े होते तो क्या होते, बाबू होते, मास्टर होते, लेकिन मैं एडमिशन होते ही डॉक्टर हो गया। अब सोचिए डॉक्टर और बाबू में फर्क तो पहले ही हो गया। फिर हमारी एजुकेशन, अब देखिए मैं कानपुर से मैंने एमबीबीएस किया और मैंने पीजीआई से एमएस ऑर्थोपेडिक किया। कानपुर से पैदा होने पढ़ने के बाद मेरा पीजीआई वो आज भी है, सेकंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, इस साल की रैंकिंग में तो ये आया हुआ है। और पीजीआई जैसी जगह में पहुंच गया, पीजीआई मतलब चंडीगढ़ जैसे शहर में पहुंच गए, जिस जगह प्रतिष्ठित संस्थान में पहुंच गए और उस प्रतिष्ठित शहर में पहुंच गए कि आज भी आप कहें 75वां अमृत महोत्सव आजादी का हम मना रहे हैं और 75 साल में भी हम एक दूसरा चंडीगढ़ खड़ा नहीं कर पाए। तो आप देखिए आप इसमें क्या सोच, और कहाँ हमें तो इतना बदलाव। और फिर देखा कि अब हम एमएस ऑर्थोपेडिक हो गए, इसके बाद मुझे सफदरजंग अस्पताल में ऑर्थोपेडिक में सीनियर रेजिडेंसी मिली, तो कहाँ हम उससे फिर दिल्ली आ गए, जिसको कि सबसे अच्छा। और आज भी उन दिनों सर ओपीडी में कम से कम 250-300 लोग ओपीडी में आया करते थे। 1983 की बात बता रहे हैं, जो लगभग सर इस समय देखिए 40 साल हो गए। तो इन लोगों ने भी हमारे लिए मतलब बड़ा इन सब का योगदान रहा। मैं जो आप कहें कि बोलने से बहुत लोग पूछते हैं कि भाई इसमें योगदान क्या है, यदि आप भी तो मैं ये कहूँगा मुझमें मेरा योगदान तो कम है, दूसरे लोग का। हमें बनाने में हमारे ही माँ बाप का नहीं, दूसरों के माँ बाप का। आप ये देखिए हमारे रोगियों का, हमारे मरीजों के, जिन्होंने हमें इतना भरोसा रखा। यदि हम इसी के कंटिन्यूटी में कह दें कि आप कुछ पूछे उससे पहले, मैंने एक 16.5 किलो का ट्यूमर निकाला। आप देखिए, आपने कभी तरबूज खरीदा? लेकिन मैंने ट्यूमर निकाला और उसकी वजह से मेरा नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। क्या बात है, अच्छा कि आपने हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंचेगी। और उस गिनीज बुक ने, आप सोचिए कि जब जो आपने कहा कि ये सब पुरुष का रिकॉग्निशन, इन्होंने तो कैटलिस्ट का काम किया है।
हमने एक ऐसा इनोवेटिव काम किया ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जो अपने आप है। आपने सुना होगा रिसाइकलिंग ऑफ द ट्यूमर। रिसाइकिल को समझते हैं, जैसे ये फूल है, पत्ते हैं, हम कूड़े में डाल देते फिर उसको नया चीज बनाते हैं, तो ये अनोखी चीज है। मैंने कैंसर बोन को 6 इंच बोन को 1 इंच नहीं 6 इंच, आप समझ लीजिए 6 इंच कितना होता है, 15 सेंटीमीटर की उसको बोन को निकाला, टांग की बोन को निकाला। वो भी जवान लड़की थी जो उस समय हमारे ख्याल से उसकी उम्र रही होगी, आज वो 30 साल की और 15 साल पहले 15 साल की थी उस समय, अब वो 10th में पढ़ती थी। उसको कैंसर था, मैंने उसको निकाला और उसको निकालने के बाद ऑटोक्लेवर, जिसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं ऑटोक्लेव करते, उसमें डाला स्प्लाइजर, फिर उसको निकाल के फिर उसमें लगा दिया, बोन बन गया। क्या बात है। हमने देखा कैसे अविस्मरणीय पलों को ये साझा कर रहे हैं, इतनी बड़ी उपलब्धियों को कितनी सहजता से साझा कर रहे हैं। हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को फक्र है। और मुझे लगता है सिर्फ देवभूमि देहरादून को नहीं, बल्कि पूरी राष्ट्र को आप जैसे अनुभूति पे, विभूति पे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए इतना कुछ किया और बहुत सीधे और सरल तरीके से किया। और हम गणेश जी का पूजा करते हैं, तो जिस बार गणेश जी का पूजा कुछ कारण से हम नहीं कर पाते, इसके तौर पे ये पहले ऐसे पद्मश्री हैं जिनको इस क्षेत्र में इतना सम्मानजनक सम्मान प्राप्त हुआ है, अवार्ड मिला है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां हम देश दुनिया के अलग अलग किरदारों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। पिछले कई महीनों में हमने कई सारे किरदारों से आपकी मुलाकात करवाई, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री का सम्मान प्राप्त किया है। आज की हमारी बातचीत में एक विशेष अतिथि हमारे साथ हैं, डॉक्टर कुशल कंवर शर्मा। नमस्ते। स्वागत है सर आपका। विशेष और रोचक इसलिए क्योंकि इनका काम बहुत रोचक है। हमने साहित्य से जुड़े हुए लोगों से आपको मिलवाया है, हमने चिकित्सा क्षेत्र के लोगों से आपको मिलवाया है, हमने समाज कार्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को आपको मिलवाया है। लेकिन आज इस विशेष कड़ी में हम एक ऐसे किरदार से मिल रहे हैं जो एलिफेंट मैन के नाम से पूरे एशिया में प्रसिद्ध हैं। न सिर्फ भारत में, इंडोनेशिया, अमेरिका और भी बहुत सारे एशिया, यूरोपियन एशियाई देशों में इन्होंने अपने नाम से ख्याति प्राप्त की है। तो आइए, असम में जन्मे, असम के नलबाड़ी में जन्मे एक छोटे से गांव से आने वाले डॉक्टर कुशल शर्मा से आज बातचीत करवाते हैं, आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और जानते हैं कि इस एलिफेंट मैन ने अपने सफ़र में, इतने लंबे सफ़र में क्या क्या हासिल किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो इस कड़ी में मिलते हैं एलिफेंट मैन ऑफ एशिया डॉक्टर कुशल शर्मा से। तो सर, बहुत स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, हमने कई कड़ियों में अलग अलग पद्मश्री किरदारों से लोगों को मिलवाया है। आज हम आपसे मिल रहे हैं। अभी हाल में ही आपको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए। आपने रेडियोलॉजी में पढ़ाई की है, अपनी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में। आपने कॉटन कॉलेज, जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा है, विश्वविद्यालय, उससे अपनी पढ़ाई की है। आपने शिक्षक के तौर पे भी अपनी सेवाएं दी हैं और दे भी रहे हैं। आपने हाथियों को लेकर बहुत काम किया है, इसलिए शायद पूरे देश में और संभवतः पूरे एशियाई देशों में आपका नाम हाथी मैन के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये जो आपकी यात्रा है बहुत रोचक है, काम भी बहुत रोचक है। तो आज क्यों ना इस पे बातचीत की जाए और आपके पद्मश्री की इस सफ़र को साझा किया जाए हमारे दर्शकों के साथ। तो सर, ये शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा ये बताएं कि कार्य बहुत अलग हटके है और एलिफेंट मैन नाम कैसे पड़ा, हाथी मैन कैसे, थोड़ा इसके बारे में बताएं। हाँ, अगर हम शुरुआत के बारे में बोलने लगे तो आई थिंक वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम माय चाइल्डहुड।
तो आपने जिक्र किया मेरा घर का, नलबरी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा जगह है, बोरामा नाम है उसका, ट्राइबल एरिया है प्राइमरीली, एंड इट इज इन द फुट हिल्स ऑफ भूटान। तो हमारा घर में जगह बहुत थे उस टाइम, लाइक लोग बहुत कम थे और हमारा घर में काफ़ी ज़मीन थे जी। और हमारा एक हाथी हुआ करती थी, एक फीमेल हाथी जी। मादा हाथी, एंड उसकी नाम थी लक्ष्मी, मुझे अभी भी याद है। और आपके घर में? मेरे घर में ही थी। अच्छा। हमारे तो वो लक्ष्मी, मुझे याद है मैं 7 साल 8 साल उम्र का मैं था और उसी टाइम में मैं लक्ष्मी को राइड करता था, लक्ष्मी पे बैठ के मैं लाइक नदी में ले जाता था और नदी के उस पार जंगल थे, जंगल में घास खिलाने के लिए ले जाता था। अच्छा। क्योंकि जो माहौल था ना वो थोड़ा सा ड्रग एडिक्ट और अल्कोहलिक नेचर का था जी। तो हाथी को किसी को अगर दिया जाए और ले जाने के लिए ये खुश रहता है, पैर के नीचे आराम से सो जाता था। तो उसके बाद मेरा पापा जॉब में थे और ट्रांसफ़र हुआ दूसरा जगह में, और मेरा जो बहुत इंटीमेट एसोसिएशन था लक्ष्मी के साथ वो 1-1.5 साल का ही था। और इस दौरान मैं माँ से मैं मार भी खाता था। अच्छा। क्योंकि हाथी के साथ घूमते रहता था जी, जी। और माँ मुझे बोलती थी कि तुम हाथी का माहौल बनोगे क्या, तुमको पढ़ना है, आगे जाके मास्टर बनना है या डॉक्टर बनना है, तुम क्यों हाथी के साथ टाइम बर्बाद करते हो? ये जो हाथी है आपके पिताजी ने पाला हुआ? नहीं, पिताजी ने पाला। मैंने एक्चुअली हमारा मैंने बोला ना आपका, हमारा जो ऑर्चर्ड है बहुत बड़ा था। जी जी। और हमारा एक फैमिली फ्रेंड थे जी। जो एक लैंडलॉर्ड था जी। उनका लैंडलॉर्ड में एक्चुअली बिजनेसमैन था वो, उनका हाथी था ये। और जब लॉगिंग के लिए भूटान में ले जाते थे और ऑफ सीजन में, जैसे 6 महीना का ऑफ सीजन होता है, जब बारिश गिरता है ना तो लॉगिंग नहीं कर सकता और हाथी ले आकर के हमारे घर में रखते थे। हमारा बहुत जगह था और लगभग सब लोग जानते थे हमारा ही हाथी जी। और हम भी ऐसे ही मानते थे। और मेरा दादी माँ भी उस हाथी को हमेशा धान खिलाता था। अच्छा। और यहाँ फोरहेड में जो सिंदूर है ना, सिंदूर देता था। जी जी। ये सब तो बहुत प्यारा सा हाथी था। और ये 1.5 साल का मेरा इंटीमेट रिलेशन हुआ। फिर जब मेरा पापा ट्रांसफर हो गया जी। हम वापस आए वहाँ 1.5 साल 2 साल बाद, तो मैंने सीधा ऑर्चर्ड में भागा लक्ष्मी को मिलने के लिए। और उस जमाने का बात कर रहा हूँ जब कोई टेलीफोन नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन इतना नहीं था जी। तो आके मैं इधर उधर देखा, लक्ष्मी कहीं नहीं है। तो मैं दादी माँ के पास चला गया, दादी माँ लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है? तो दादी माँ बहुत अपसेट, दादी माँ जानती थी कि मैं रोने लगूंगा। दादी माँ ने बोला कि लक्ष्मी नहीं रहा बेटा, लक्ष्मी का कुछ इन्फेक्शन हो गया था, कुछ बीमार हो गया था और उससे लक्ष्मी गुजर गया। लेकिन उस इंटरिम पीरियड में मैं जब से वेटनरी सब्जेक्ट को चुना और हाथी को इलाज करने के लिए, सेवा करने के लिए मुझे मौका मिला, ये जो इंटरिम 15-20 साल का जो टाइम था, जब से मेरा जिंदगी का जो हाथी के साथ दौर जुड़ गया ना, और हम गणेश जी का पूजा करते हैं, तो जिस बार गणेश जी का पूजा कुछ कारण से हम नहीं कर पाते हैं, मेरा घर में सब लोग हाथी का सपना देखने लगते हैं। अच्छा। और देखते हैं आके दरवाजा से हाथ ऐसे फैलाते हैं। अच्छा। सूर जो बोलता है ना वो हाथी है और ऐसा कुछ मांगते हैं। अच्छा। तो हम कभी मिस नहीं करते गणेश जी का पूजा। अब भगवान जानता है क्या बात है। मैं हमेशा सपना देखता था। फिर प्रोफेशन चुनने का जब टाइम आया तो मैंने वेटनरी का प्रोफेशन चुना। ऐसा नहीं सोचता कि मुझे हाथी का इलाज करने का मौका मिलेगा, लेकिन जानवरों के साथ, सब दूसरा जानवर के साथ भी, जैसे गाय भैंस हम पालते थे, हमारे घर में बहुत थे और सब कुछ जानते हैं, दूध भी निकालना जानते हैं, घास खाते हैं, सब कुछ करते हैं, अभी भी करते हैं। अच्छा। तो वेटनरी प्रोफेशन चुना, जहाँ की मुझे मेडिकल में सीट मिला था, इंजीनियरिंग में सीट मिला था, तब भी कोई मुझे बोला क्या कर रहे हो तुम, कहाँ वेटनरी का? मेरे माँ की माँ जो नानी, तो 2-3 दिन तक खाना भी नहीं खाया था। ब्राह्मण का लड़का होके तुम गाय को इंजेक्शन करोगे, कितना पाप होगा।
तो मेरा दादाजी नाना जी ने समझाया कि देखो ऐसा बात नहीं है, वो तो इंजेक्शन करेगा भलाई के लिए, उसको सेवा करने के लिए। जी। तो हमारा बैकग्राउंड ऐसा ही था बहुत। वो हाथी पालने का सिलसिला जो शुरू थोड़ा हुआ, तो था, फिर लेकिन जब मैंने BBSc पास किया, बैचलर वेटनरी साइंस, वेटनरी डिग्री, और भगवान की दुआ से आई टॉप द लिस्ट, आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट। तो उसके बाद मैंने वेटनरी सर्जरी में मास्टर्स किया, जी। और उस टाइम में मेरा गाइड और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था डॉक्टर SC पाठक, एंड डॉक्टर पाठक वाज द लीडिंग एलिफेंट सर्जन ऑफ दैट टाइम। तो मैं अब डेस्टिनी में बोल रहा हूँ, और पाठक सर के साथ बैग उठा के जाने का मुझे मौका मिला, जी जी, और वही शुरुआत हुआ ये डॉक्टरी का, जो इस पेशे से आप कम से जुड़े। कम 40 इयर्स का ये एसोसिएशन एज ए डॉक्टर। जी जी, तो बैग लेके मैं चलता था और बहुत ही एंजॉय करता था मैं। हाथी के साथ में हमेशा दोस्ती होता था, और धीरे धीरे वहाँ से शुरू हुआ मेरा ये करियर। और ये जब आपने बोला यात्रा, ये शुरू जो हुई। ये जो मेरा है वहाँ से शुरू हुआ एक्चुअली। दर्शकों, आप जैसा कि सुन रहे हैं, हम एक बहुत ही सहज किरदार से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हाथी के डॉक्टर हैं, हाथी मैन हैं, जैसा कि इन्होंने खुद भी बताया, पूरे देश भर में प्रचलित हैं और बहुत सारे हाथियों की इन्होंने सेवा की है। चूँकि इन्होंने बताया कि बचपन से इनका लगाव हाथी से था, वो प्रेम था, और शायद उस प्रेम की ही वो पराकाष्ठा थी कि आज ये वेटनरी डॉक्टर के तौर पे और हाथी डॉक्टर के रूप में भी जाने जाते हैं और हाथी मैन के रूप में जाने। बहुत ज़्यादा एक ड्राइव थी कि कुछ और करना है। तो वो पढ़ी लिखी महिलाएं जाती कहाँ हैं? क्या पढ़ लिख के इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके घर में बैठ जाती हैं? और अगर बैठ जाती हैं तो क्या वो उनकी अपनी चॉइस है, या उनको सोसाइटी मजबूर करती है, या उनको वर्क प्लेस में अभी भी बायसेस मिलती हैं? तो ये सारे मुद्दे हैं डाइवर्सिटी और इंक्लूजन। जब मैं अपनी कुर्सी से उठ के प्रेसिडेंट तक पहुंची, वो मोमेंट्स मुझे ऐसे लगे कि वक्त खिंच गया। अच्छा, खिंच गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पद्मश्री की इस विशेष श्रृंखला में, जहां हम लगातार कई महीनों से दिन प्रतिदिन नए नए लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। आज की विशेष श्रृंखला में हमसे जुड़ रही हैं डॉक्टर नीरू कुमार, एक विशेष क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। एक ऐसी कद्दावर महिला, एक ऐसी विशेष महिला जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। आज हम उन उपलब्धियों की चर्चा करेंगे और उनसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे आज की इस विशेष श्रृंखला में। हमने अलग अलग मिट्टी से अलग अलग लोगों को आप तक पहुँचाया है। तो वो कहते हैं ना कि ये कुछ शब्द हैं जो मैडम के लिए डेडिकेटेड हैं कि ज़माने से हम नहीं, ज़माना हमसे है, हमसे वो मिटा सके नहीं, ये किसी में हस्ती नहीं। तो हम बातचीत करते हैं कि जब पद्मश्री की हम बात करते हैं, पद्मश्री ने लगातार ऐसे लोगों को चयनित किया है जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ खास और विशेष उपलब्धियां हासिल की है। खासतौर से द पीपल हु आर रिकग्नाइजेज, द पीपल फ्रॉम डाइवर्स फील्ड विद द डिसेबिलिटीज़। और इस बार हमने ऐसे ऐसे लोगों को चुनकर खास मोतियों में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत किया जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अहम और बहुत ही विशेष उपलब्धियां हासिल की है। थोड़ा सा परिचय कराऊंगी डॉक्टर नीरू कुमार से। डॉक्टर नीरू कुमार एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, और ये विशेष तौर से काउंसलिंग भी करती हैं, और हम खास काउंसलिंग की चर्चा करेंगे। ये डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन काउंसलिंग क्या है, जेंडर डाइवर्स इंक्लूजन क्या है। इस विशेष मुलाकातों में हम बहुत सारी चीज़ों पे, छोटी छोटी बातों की बहुत बड़ी चर्चा करेंगे। तो स्वागत है डॉक्टर नीरू कुमार आपका इस कार्यक्रम में, जिसमें हम लगातार कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, पद्मश्री से रूबरू करा रहे हैं, और ख़ासतौर से जो महिला सशक्त महिलाएँ हैं उस श्रृंखला में आप जुड़ रही हैं। हमारे दर्शकों तक आपका प्यार, आपका सम्मान और आपकी उपलब्धियाँ
ये पहुंच रही है और आपने हमें समय दिया है। इसके लिए भी सबसे पहले आपको बधाई दूंगी कि आपने हमें समय दिया और हमें वहाँ तक पहुँचने का साहस दिया कि हम आपसे मिल पाएँ। तो एक बार पुनः स्वागत है। और सबसे पहले तो ये कि हम बात करते हैं NLP, कुछ खास तरह का प्रोग्राम, राइट। इंक्लूजन डाइवर्सिटी, ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है लोगों के लिए, तो क्या है, थोड़ा सा मैं शुरुआत ये करना चाहूँगी कि चूँकि हमारे देश में इस तरह के कॉन्सेप्ट, आप अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हैं, जागरूकता फैला रही हैं लोगों में, किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है और क्या है, थोड़ा सा प्रकाश डालें। सो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन और NLP थोड़ा सा अलग हैं एक दूसरे से, तो मैं इनको अलग अलग समझाती हूँ। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन हमारे देश के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। आवर कंट्री इज़ वेरी डाइवर्स, ये तो हमें शुरू से ही पता है। जितने हमारे स्टेट्स हैं, जितनी हमारी लैंग्वेजेस हैं, जितने हमारे फूड्स हैं, ये हम जानते थे बचपन से। जो चीज़ हम नहीं जानते थे कि और भी कई किस्म की डाइवर्सिटी होती है, फिर हमें समझ आने लगा जेंडर भी एक डाइवर्सिटी है, मेल फीमेल अलग है। फिर हमें समझ आने लगा फिज़िकल एबिलिटी भी इसी में ही आता है। रेस, एथनिसिटी, कास्ट, सब कुछ डाइवर्सिटी में आता है। यहाँ तक ये भी आता है कि हम किस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हमारा लर्निंग स्टाइल क्या है, हमारी नेचर क्या है। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एज की भी एक डाइवर्सिटी होती है। सो ये बहुत किस्म की डाइवर्सिटी है। अब ये सब लोग मिलजुल कर आज के टाइम पे काम कर रहे हैं, क्योंकि जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं वो तो पिघलती जा रही हैं, है ना। इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी अब बहुत सारा ये कल्चर आ गया है कि सब लोग एक दूसरे के साथ मिक्स होके काम कर रहे हैं। क्या उसमें वो इंक्लूजन है, कोलैबोरेशन है कि सबको उतनी वैल्यू और रिस्पेक्ट दी जाए? क्या वो कोलैबोरेशन है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं हो रहा, सबकी आवाज़ उतनी ही सुनी जा रही है? शायद नहीं। उसके लिए अभी हमें बहुत काम करना है। तो हम जो सबसे बेसिक जेंडर पे शुरू होते हैं कि वुमन के राइट्स जो हैं या वुमन की रिस्पेक्ट जो है, अपनी ही कंट्री में अगर लें तो उसमें बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा है और आगे भी बहुत काम करना है। मैंने जब ये काम 15 साल पहले शुरू किया तो सिचुएशन आज से भी गंभीर थी। गंभीर तो आज भी है, पर वो आज से भी गंभीर थी, क्योंकि जब वुमन वर्क प्लेस में आनी शुरू हुई तो उनको इतना वेलकम नहीं मिला। बहुत से मुद्दे उठते थे, घर का ध्यान कौन रखेगा, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, ईगो इश्यूज़ भी होते थे, पावर इश्यूज़ भी होते थे। ये माना जाता था कि वुमन शायद इतनी डेडिकेशन से, इतनी सिंसियरिटी से काम नहीं कर सकती जैसे पुरुष कर सकते हैं। तो उनकी वो जगह बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ा हमें। आज हम थोड़े से बेटर हैं, पर थोड़े ही बेटर हैं। आज भी अगर हम देखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेशन है वुमन की, मैंने कॉर्पोरेट में बहुत काम किया, जो रिप्रेजेंटेशन है वुमन की कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो क्यों पुरुषों से इतनी कम है? क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी इनरोलमेंट देखते हैं या एजुकेशनल स्टेटस देखते हैं, उसमें तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर है। तो वो पढ़ी लिखी महिलाएं जाती कहाँ हैं? क्या पढ़ लिख के इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके घर में बैठ जाती हैं? और अगर बैठ जाती हैं तो क्या वो उनकी अपनी चॉइस है, या उनको सोसाइटी मजबूर करती है, या उनको वर्क प्लेस में अभी भी बायसेस मिलती हैं? तो ये सारे मुद्दे हैं डाइवर्सिटी और इंक्लूजन के। दैट्स ग्रेट। चूँकि हम एक ऐसे समाज में हैं, भारत का समाज अभी भी बहुत सारे मुद्दों को लेकर, हम जेंडर की बात करते हैं, हम सोसाइटी में अवेयरनेस की बात करते हैं। आपने विशेष तौर से महिलाओं की बात कही कि महिलाओं में अभी भी वो समानता का भाव नहीं आया है हमारे देश में कि महिलाओं को इक्वल पोजीशन मिले और इक्वालिटी मिले। कैसे ये प्रेरणा आई? कैसे आपने सोचा कि मुझे इस क्षेत्र में काम करना है? चूँकि पद्मश्री आपको मिला है, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है, आपने सोशल वर्क किया है, वो मोटिवेशन लेवल कहाँ से आया? ये ज़रा इस पे प्रकाश डालें। तो मैं वैसे तो एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैंने 25 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस की, CGHS में थी मैं, और पर अंदर से एक इच्छा थी, एक बहुत ज़्यादा एक ड्राइव थी कि कुछ और करना है। इसके कारण दो हैं। मुझे खुद को एक डिसेबिलिटी है। जब मैं 3 साल की एज की थी तो मुझे पोलियो हो गया था। एक लड़की
विद डिसेबिलिटी के साथ क्या क्या चैलेंजेस हुए वो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किए। बहुत ज़्यादा थे। एक कमेंट जो बचपन से आता था कि लड़की है, ऊपर से डिसेबिलिटी है, शादी कैसे होगी। ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। ये बड़ा कॉमन प्रश्न है। उसके ऊपर से या बहुत सुंदर है मगर ये क्या हो गया। सो ये सारी चीज़ें जो थी वो अंदर कहीं ना कहीं बैठ जाती हैं। मेरे फादर मेरी एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने की बहुत हिम्मत दी। तो वो कहते थे कि तुम एक हॉस्पिटल खोलना, क्योंकि तुमने ये चीज़ें इतनी बारीकी से खुद एक्सपीरियंस किए हैं। क्योंकि मैं जब 10th 12th में थी, जब बाकी लोग बहुत पढ़ाइयाँ कर रहे थे, मेरी तो एक के बाद एक सर्जरी हो रही थी। मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में होती थी। बहुत डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस होते थे, क्योंकि अच्छे डॉक्टर्स उन दिनों सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होते थे। तो जनरल वार्ड में एक बेड में 3-3 लोग सो रहे होते थे। तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस किया। तो मेरे फादर, जब वो कठिनाइयाँ होती थी, तकलीफ़ें होती थी, मेरे फादर कहते थे तुम हॉस्पिटल खोलना। पर मुझे लगता था सिर्फ हॉस्पिटल खोलने से बात नहीं बनती है। एक इंक्लूजन जो सोसाइटी में ज़रूरत है, जो लोग डिफरेंट हैं, वो बड़ी ज़रूरी है। तो शायद बहुत छोटी एज, जब डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन क्या चीज़ होती थी मुझे नहीं पता था, पर ये पता था फेयर और अनफेयर क्या है। और किसी के साथ भी जब अनफेयरनेस होती थी तो मेरा दिल तड़पता था, चाहे वो सड़क पे क्यों ना हो रही हो। हमारे घर में जब डोमेस्टिक हेल्प होती थी तो मैं अपनी माँ से हमेशा ये क्वेश्चन पूछती थी कि ये ज़मीन पर क्यों सोते हैं और हम बेड पे क्यों सोते हैं। तो ये फेयरनेस का मुद्दा आई थिंक ऐसा लगता है पैदाइशी है, शायद अपनी तकलीफ़ों के कारण हुआ, पर जो भी है मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पर्पस बन गया। ग्रेट। तो आज हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसी महिला से जो न केवल सशक्त हैं बल्कि सशक्तता के लिए जागरूकता भी फैला रही हैं, लगातार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रही हैं। तो आज हम एक ऐसी ही बेहद भावुक, बेहद संवेदनशील महिला से साक्षात्कार कर रहे हैं और उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आप इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ के भी काम कर रही हैं, चुनाव आयोग से कैसे जुड़ना हुआ और वहाँ अपनी किस तरह की सेवाएं दे रही हैं? एक्चुअली मुझे तो पता नहीं कैसे हुआ। नमस्कार। अपनी कार्यकुशलता के बल पर देश विदेश में परचम लहराने के लिए और समाज में कुछ उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार हर साल कुछ खास लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करती है। पद्मश्री अवार्ड एक ऐसा सम्मान जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान की श्रेणी में आता है, लेकिन उनमें से एक है। अगर हम इस श्रेणी की बात करें तो भारत रत्न सर्वोच्च श्रेणी में आता है, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और अंत में पद्मश्री सम्मान। और ये जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, संस्कृति, खेलकूद, लोक जीवन, लोक सामान्य, नाटक आदि के क्षेत्र में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता है। हर साल भारत सरकार गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसे सम्मानों की घोषणा करती है। और 2019 की अगर हम बात करें तो इस बार चिकित्सा के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण अवदान के लिए जो सम्मान दिया गया है डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी को। हम इस श्रेणी में, चूँकि हम पुस्तक के फॉर्म में इस पूरी पुस्तक का संकलन कर रहे हैं, न केवल पुस्तक के फॉर्म में बल्कि डिजिटल फॉर्म में भी पद्मश्री सम्मान प्राप्त करने वाले सम्मानजनक नागरिकों को एक डिजिटल फॉर्म में समेट रहे हैं। आपको बताते चलूं कि इतिहास में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस सम्मान की आधारशिला रखी थी और उसके बाद से 1952 के बाद से ये सम्मान देने की प्रथा की विधिवत शुरुआत हुई। तो आज की इस कड़ी में, आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में अतुलनीय काम करने वाले डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी से।
जिन्होंने अपने कार्य से न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी परचम लहराया है और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। तो आज की कड़ी में हम मिलते हैं डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी से। स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में, जिसमें हम पद्मश्री से सम्मान प्राप्तकर्ताओं को जोड़ते हैं, उनकी जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं को लेते हैं और न सिर्फ घटनाओं को बल्कि उन्होंने सामाजिक जीवन में क्या उपलब्धियां हासिल की है इस पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं डॉक्टर संदीप गुलेरिया जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में 2019 में पद्मश्री अवार्ड हासिल किया है और इनके महती कार्य के लिए भारत सरकार ने इनको ये अवार्ड और ये सम्मान दिया है। तो आज उन्हीं की ज़बानी और उन्हीं से आज उनकी कहानी। तो इससे शुरुआत से पहले, जैसा कि हम श्रृंखला में हर बार करते हैं, श्रृंखला की शुरुआत से पहले हम कुछ पंक्तियाँ अपनी अतिथि के लिए समर्पित करते हैं। ठीक उसी परंपरा का वहन करते हुए हमने कुछ पंक्तियाँ आपके लिए हम लेकर आए हैं और आपको वो पंक्तियाँ हम समर्पित करना चाहते हैं। इजाज़त हो तो। जी मैम। वो कहते हैं कि हाथों की लकीर बनाकर चले हैं हम, हाथों की लकीर बनाकर चले हैं हम, कंधे पे आसमां उठाकर चले हैं हम, हाथों की लकीर बनाकर चले हैं हम, कंधे पे आसमां उठाकर चले हैं हम, कह दो घनी रात के तमस अंधेरे को कि हथेलियों पर सूरज उगा के चले हैं हम। तो ये कुछ पंक्तियाँ सर के लिए थी। डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया है। हम इस बातचीत में और ख़ास तौर से इस विशेष श्रृंखला में ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में किस तरह की उपलब्धियाँ और किन संघर्षों के साथ और कहाँ कहाँ कैसे कैसे हासिल की। तो एक बार फिर स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे कार्यक्रम में। कहते हैं कुछ लोग हमारे इतिहास में और परंपरा में कुछ ऐसे लोग और ऐसे किरदार मिल जाते हैं जो इस धरती पे सिर्फ इसलिए अवतरित होते हैं कि उन्हें कुछ परोपकार का काम करना है, और वो आते ही इसलिए हैं कि उन्हें लोगों को कुछ संवेदनाएं देनी है, लोगों को कुछ सहायता देनी है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक मास्टर संदीप के तौर पे जब आप छुटपन में थे तब से लेकर अब तक का सफ़र, डॉक्टर बनने तक का सफ़र कैसा रहा, किन संघर्षों से गुजरा, और ज़रा शुरुआत से बताएं। तो देखिए, ऐसा है कि मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ था। मेरे फादर डॉक्टर हैं और मेरी मदर एक स्कूल टीचर थी, और क्योंकि मेरे फादर बड़े सक्सेसफुल डॉक्टर थे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में ही काम करते थे, तो जब हम लोग बचपन में थे तो हम सब के अंदर उनको काम करते करते देखकर हम सब के अंदर यही इच्छा आई कि हम भी बड़े होकर डॉक्टर ही बने, और इसलिए हमने करीब यंग जीवन में तय कर लिया कि हम आगे जाके डॉक्टरी ही करेंगे। जब मैंने स्कूलिंग अपनी सेंट कोलंबस स्कूल दिल्ली से करी, और उसके बाद दिल्ली में एक एग्ज़ाम होता है जिसको PMT बोलते हैं, प्री मेडिकल टेस्ट। उसके द्वारा मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में MBBS में एडमिशन मिला। मैंने MBBS किया और फिर उसके बाद मुझे MS मास्टर्स के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मैं सिलेक्ट हुआ। मैंने वहाँ मास्टर्स ऑफ सर्जरी किया जी। और वहाँ मुझे इंटरेस्ट ट्रांसप्लांटेशन यानी कि ट्रांसप्लांटेशन में ज़्यादा है, यानी कि जिसमें लोग एक आदमी अपना गुर्दा किसी को दान करता है, उसमें ज़्यादा आया। और ये एक बड़ी ही साइंटिफिक, बड़ी ही स्टिमुलेटिंग ब्रांच मुझे लगी। इसके लिए फिर मैं इंग्लैंड गया, जहाँ मैंने काफ़ी समय काटा, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ काम किया, और लगभग 2002 में मैं वापस आया और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में मुझे फिर से नौकरी मिली, और मैं वहाँ पे काम करता हुआ ट्रांसप्लांट का प्रोग्राम सेट किया और खूब ट्रांसप्लांट्स इंस्टीट्यूट में किए। 2011 में मुझे लगा कि अब मैं प्रोफेसर बन गया हूँ, अब कुछ और पहाड़ चढ़ें, कुछ और देखें बाहर सब कुछ कैसा है जी। तो 2011 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, और उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल मैंने एज ए सीनियर कंसल्टेंट ज्वाइन किया। ये हमारी पूरी छोटी सी कहानी तो जैसा कि हमने देखा, सर ने अपनी पूरी जर्नी को, पूरी यात्रा को कुछ एक शब्दों में समेट दिया है, और जो बहुत ही, मुझे लगता है हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही प्रेरणास्पद रहेगी। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप चूँकि सीनियर कंसल्टेंट हैं, अपोलो से जुड़े हुए हैं, और आपने किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर काफ़ी कुछ किया है, शोध भी किया है, रिसर्च भी कर रहे हैं और लगातार काम करते रहे हैं। भारत में इसका क्या भविष्य देखते हैं? तो देखिए, ऐसा है, आप ये सोचिए कि हर साल लगभग 1 लाख लोगों के किडनीज फेल होती हैं जी। और ट्रांसप्लांट सिर्फ 8,000 से 10,000 लोगों का होता है। अगर आप 100 लोगों को लें जिनके गुर्दे ठीक नहीं काम कर रहे हों, और आप उनको बोलिए कि आप डायलिसिस पे रहिए या आप ट्रांसप्लांट कराइए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक आज हमारी समझ है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ट्रांसप्लांट है। आप नॉर्मल जीवन व्यतीत करेंगे, आप काम कर पाएंगे, आप अपने परिवार के लिए पैसा कमा पाएंगे, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे।
तो भारत के लिए इसमें बड़ा ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी है। दूसरी बात यह है कि किडनी फेलियर जो है वो यंग पीपल को अफेक्ट ज़्यादा करता है भारत में। यंग पीपल प्राइम ऑफ देयर लाइफ्स, तो उनके लिए ट्रांसप्लांट इज़ नथिंग बट अ बून सर। एग्जैक्टली, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। और जिस तरह से हमारे देश में प्रदूषण की समस्या जो बढ़ती जा रही है, और कुछ एक ऐसी समस्याएं जो खासकर अभी हमने महामारी के तौर पे देखा, महामारी की पैंडेमिक एज में जिस तरह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे सामने आई, तो एक थ्रेट है हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, और हमारे एक वायुमंडल से रिलेटेड जुड़ी हुई जलवायु से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या तो लगता है? देखिए, ऐसा है कि पोल्यूशन का इफ़ेक्ट किडनी पे कम होता है, लंग्स पे ज़्यादा होता है। जहाँ तक इस महामारी का इफ़ेक्ट है, अगर आपके गुर्दे कमज़ोर हैं और आपको कोरोना हो तो आपका क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, आप डायलिसिस पे आ सकते हैं। हो सकता है आपको कोरोना हो, आपको हाई डोज स्टीरॉइड्स दिए जाएं, आपको डायबिटीज़ हो जाए और उसके कारण आपका गुर्दा बैठ जाए। तो कोरोना से भी गुर्दा फेलियर करे, किडनी फेलियर का डिजीज़ बढ़ेगा, ट्रांसप्लांट की डिमांड ज़्यादा होगी। और अगर आपका घर में कोई व्यक्ति है जो प्यार मोहब्बत में आपको गुर्दा देना चाहता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन, अगर आप फिट हैं, ट्रांसप्लांट ही रहेगा सर। जी, बहुत बढ़िया। एक बाल्यावस्था में जब मैं थोड़ा आपको आपके पीछे के अतीत पे लेकर जाऊंगी, जब आप छुटपन में थे, आप मास्टर संदीप हुआ करते थे, हमारे दर्शकों को बताएं कि आपका बचपन कहाँ पे था? तो ज़्यादातर मेरा बचपन दिल्ली में ही बीता, मैं दिल्ली में ही पढ़ा, मैंने सारी ज़िंदगी अपनी दिल्ली में ही काटी है। पर मेरी मदर धर्मशाला से थी, तो हम धर्मशाला हर साल लगभग एक आधे महीने के लिए जाते थे। पठानकोट के पास एक गांव है, तो हम वहाँ जाते थे। पर ज़्यादातर जीवन हमारा दिल्ली में ही पड़ा। आई एम मोर ऑफ अ सिटी बॉय, मैंने पूरी अपनी ज़िंदगी यहीं काटी है। दिल्ली की एक एक नस को मैं पहचानता हूँ, तो ऐसी कोई। कहते हैं बचपन में कुछ मिथकीय चरित्र होते हैं जो एक बचपन में एक किसी बच्चे को आकर्षित करते हैं। उसका एक सुपर हीरो होता है, वो किसी न किसी सुपर हीरो से आकर्षित होता है, उसकी तरह बनना चाहता है, उसको अपने जीवन में उतारना चाहता है। मैं मानती हूँ कि इसी तरह का एक मिथक, एक सांस्कृतिक जो सुपर हीरो था, मिथकीय चरित्र कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द भी घूमता होगा बचपन में। कहीं ना कहीं आप भी उसमें खुद को तलाशते होंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सा वो मिथकीय चरित्र जिसने बहुत प्रभावित किया और जिसकी तरह आप बनना चाहते हैं? तो दो लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो था, माई फर्स्ट सुपर हीरो वॉज माई फादर। माई फादर इज बीन मेरे लिए बड़े ही सुपर हीरो रहे हैं। ही हैज़ शोन मी द वे। मैं बड़ा उनको, मैं अभी आज भी वो ही इज़ अलाइव। मैंने ये तब तो मैं भूल गई थी अपनी माँ से सीखी हुई वो जो शब्द, लेकिन धुन तो मेरी यहाँ थी। वो कैलाशमा फला पे हिमावत राजा, हिमावत राजा के सोबाली गाँवरी, ये सोबाली गाँवरी बे तरुणी वे गई है, तबरी गया है सोबड़ू नारदा। जागर गायकी की जब हम बात करते हैं तो पहला नाम आपका आता है बसंती बिष्ट का। कैसे शुरू हुआ ये सब? महिलाओं को जागर तो बड़ी दूर है, लेकिन गीत गाना भी वर्जित था हमारे यहाँ। हम लोग जंगलों में गाया करते थे। तो जागर मेरी माता जी गाती थी। जागर वो शैली है जो हमारे धर्मशास्त्र को जोड़ती है, हमारे सनातन धर्म को जोड़ती है। कोई ऐसी घटना याद आ रही हो जहाँ ये लगा हो कि संगीत और आपके साथ संघर्ष चल रहा हो, जहाँ कभी डांट पिटी हो फैमिली में, या किसी ने कुछ कहा हो कि बस अब सारे प्रतिबंध और अब संगीत बंद? कुछ ऐसी घटना याद आ रही हो? जब मैं जागर गा रही थी तो मुझे मंचों से उतार दिया था। अच्छा। और दूरदर्शन में झगड़ा करने चले गए थे हमारे तो उन्होंने बोला ये बसंती बिल्कुल जागर नहीं गाएगी, क्योंकि ये हमारा रिवाज नहीं है, ये तो पुरुषों का है। तो दूरदर्शन ने भी बोला नहीं, कौन सी अड़े रहे? हाँ, उन्होंने बोला हम कराएंगे। आकाशवाणी ने बोला हम कराएंगे बसंती का जागर। साहित्य ने बोला हम कराएंगे बसंती का जागर। हम बातचीत कर रहे हैं बसंती बिष्ट जी से, जो बता रही हैं अपनी संगीत की यात्रा को, कि कैसे इन्होंने अपनी संगीत की यात्रा शुरू की और संगीत के जरिए लोगों में और समाज में एक नई संदेश दी। आप संगीत को कैसे परिभाषित करती हैं, जागर को कैसे परिभाषित करती हैं? एक संदेश आता है कि हमारी पृष्ठभूमि क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारे तीज त्यौहार क्या हैं, हमारे लोगों की जो खेती करने के तरीके क्या हैं, सब इसमें है। दूसरे हमारे मधुमक्खियाँ, मतलब जितने भी कीट पतंगे सब
गीतों में है, लोकगीतों में, जागरों में। फिर बिरही है, जैसे पति बिछो में आप कैसे गाते हैं, आप बाल विवाह होता है तो आप उसको कैसे व्यक्त करते हैं, आप खेती में जाते हैं तो उसको कैसे व्यक्त करते हैं, वो सब गीतों में है। तो इसमें हमारे बच्चों को आधी पढ़ाई हो जाएगी अगर ये करते हैं वो लोग। लोक संगीत की तरफ जाते हैं, कई चीज़ों का जैसे खेती बाड़ी का तरीका है गीतों में है, किस समय बुआई होती है गीतों में है।